پیپلز کانفرنس کے چیئرمین سجاد غنی لون نے کہا کہ دفعہ 370 کی منسوخی کے بعد حالات مشکل ضرور ہوئے ہیں لیکن وہ اس صورتحال سے باہر آنے کا راستہ نکال لیں گے۔ انہوں نے کہا کہ لوگوں میں بھی کافی ناراضگی ہے۔ لون نے کہا کہ 5 اگست کے بعد کشمیر بیک فٹ پر ہے مگر یہ وقت بھی جلد گزر جائے گا۔ اس سے قبل لولاب کپواڑہ کی ایک معروف سیاسی شخصیت حاجی فاروق میر نے سینکڑوں کارکنوں کے ہمراہ پیپلز کانفرنس میں شمولیت اختیار کی۔ سجاد غنی لون نے ان کا خیر مقدم کیا۔ انہوں نے کہا کہ پیپلز کانفرنس ایک بہترین ٹیم تیار کر رہی ہے۔ حاجی فاروق ڈی ڈی سی کپواڑہ کے وائس چیئرمین ہیں۔ سجاد لون نے کہا کہ اگلے سال مارچ یا اپریل میں اسمبلی انتخابات ہو سکتے ہیں مگر دہلی اصل میں کب اسمبلی انتخابات منعقد کرائے گا اس بارے میں حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے۔ Things don't remain the same. حالات بدلتے رہتے ہیں۔ 5 اگست کے بعد اگر آپ دیکھیں تو کشمیری سوسائٹی، کشمیری پالیٹی یعنی کہ پولیٹیکل جو ہمارا مین سٹریم ہے، وی آر آن دا بیک۔ لیکن یہ تاریخ گواہ ہے، کوئی بھی قوم ہمیشہ عمر بھر بیک فٹ پر نہیں رہتی۔ ہمارا بھی فرنٹ فٹ پر کھیلنے کا ٹائم آئے گا انشاءاللہ، بہت جلدی آئے گا۔ لیڈرشپ کانٹ افورڈ ٹو ایکٹ ان اے مینر کہ جسے اس کے قوم کو نقصان پہنچے۔ قوم کو بچانا بھی ایک لیڈرشپ سکل ہوتی ہے۔ سب سے بڑا سکل ہوتا ہے اپنے نوجوانوں کو بچانا، اپنی قوم کو بچانا، اور پیشنس۔ اٹس اے لانگ گیم۔ نتھنگ اسٹارٹیڈ آن August 5 and nothing ended on August 5. Things will go on, politics will go on. ٹھیک ہے، اینگر تو ہے، ہمارا رول بھی بنتا ہے، بٹ ایز آن ڈیٹ وی آر پاورلیس، وی کینٹ ڈو اینی تھنگ۔ ہم کچھ نہیں۔ اور جب میں نے بولا اینگر ہے، ساتھ میں نے بولا کہ لوگوں کو بچانا، اپنے نوجوانوں کو بچانا، وہ بھی ایک لیڈرشپ سکل۔ اور میں نے بولا پیشنس بھی چاہیے۔ وی ول ٹرائی آور بیسٹ، لیکن دیکھتے ہیں آگے۔ اور اینگر ہمارے خلاف بھی ہوگا، ایگزسٹنگ ایڈمنسٹریشن کے خلاف بھی ہوگا۔ August 5 کے خلاف اینگر ہے، سمرنگ اینگر ہے، بڑا ڈینجرس ہے، بہت زیادہ ڈینجرس ہے، بٹ وی آر اویئر۔ لیکن ایز آن ڈیٹ دیر از ویری لٹل وی کین ڈو۔ پیپلز کانفرنس کے چیئرمین سجاد غنی لون کا کہنا ہے کہ انہیں دہلی میں وزیر اعظم مودی کے ساتھ منعقدہ کل جماعتی میٹنگ سے کچھ خاص امیدیں نہیں تھیں۔ ایک سوال کے جواب میں لون نے کہا کہ اگر کوئی لیڈر ایک پارٹی چھوڑ کر دوسری پارٹی میں جاتا ہے تو اسے بغیر کچھ جانے بے وفا قرار دینا جائز نہیں ہے۔ I did not have any delusions about that meeting. What happened there was a social interaction, a political interaction, exchange of ideas. I personally did not expect anything from there. I don't think, مجھے ایسا نہیں تھا کہ وہاں کچھ ہم لے کر آئیں گے. But yes, I don't hold it against them that they expected something and they did not, they believe that it is not unfolded. So, but as far as I am concerned, مجھے بھی اندازہ تھا کہ اس کا scope limited ہوگا. I just hope that they follow it up. 1 مہینہ نہیں، 2 مہینہ نہیں، 3 مہینے بعد، 4 مہینے بعد بے شک صحیح، but they follow up with something. I think need of the hour تو ہے کہ there should not be a communication gap between Delhi and Srinagar. یہ جو آپ کے ساتھ میں دیکھ رہا ہوں 2-3 مہینوں سے، لگ بھگ 4 مہینوں سے آپ کے ساتھ جوائننگ ہو رہی ہے۔ موسٹ آف دا جو پولیٹیشینس ان میں سے ہے وہ پی ڈی پی کے ساتھ تھے، نیشنل کانفرنس کے تھے، دیگر پارٹی کے ساتھ تھے۔ جب ان لوگوں نے ان کی وفا نہیں کی، آپ کیسے ایکسپیکٹ کرتے کہ یہ لوگ آپ کی پیپلز کانفرنس کی وفا کریں گے؟ دیکھو یار، ہیرو مت بنو. ڈونٹ پاس اے ججمنٹ اپون وفا اور بے وفا. دیر آر نو ہولی کاؤز ان کشمیر، نو ہولی کاؤز، نہ اس سائڈ نہ اس سائڈ. وہ میڈیا ہے، یہ پولیٹیشنز کا. آج کوئی ایک چینل میں ہوتا ہے، کل دوسرے چینل میں. وہ کیا بدماش ہے. If a person feels کہ سجاد صاحب ٹھیک نہیں چل رہے ہیں، he leaves without judging me. You prejudge him کہ یہ بے وفا ہے. جب پی سی کو سب چھوڑ کے جا رہے تھے سن 2000، 2001، 2002 میں، تب تو یہ سوال کسی نے نہیں پوچھا. کچھ پارٹیاں ہی بنی پی سی پر. حق صاحب کس میں تھے، نظام صاحب کس میں تھے، بیگ صاحب کس میں تھے، تب کوئی نہیں پوچھ رہا تھا. جب اب آ رہے ہیں تو یہ کیوں آ رہے ہیں؟ یہ کوئی نہیں بولتا ہے کہ یہ 45 سال پرانی پارٹی ہے، 50 سال پرانی پارٹی ہے، کبھی لڑنے نہیں دیا. جب لڑا چوری کی، کوئی بات نہیں کر رہا. سب بنے ہیں یہاں نیشنلسٹ کشمیری. اگر نیشنلسٹ کشمیری ہو تو پوچھو کیا ہوا 87 میں، کیا ہوا 83 میں، کیوں نہیں بات کرتے ہو اس کی؟ کوئی آئے گا، کیوں آیا؟ یہ تو پوچھو کہ یہ پارٹی تھی کتنی بڑی، کیا کیا ان کے ساتھ. I beg of you, please read history. We are all incomplete without history. What you see today has a link to the past.
Nothing is unlinked. Nothing is uncoordinated. बांडीपुरा के स्टंगू इलाके में आज एक सड़क हादसे में 2 लोगों की जान चली गई। तफसीलात के मुताबिक इलाके में एक ट्रैक्टर पलटकर नदी में गिर गया। इस वजह से एक 8 साला बच्ची और एक 18 साला नौजवान की मौत वाक़ई हो गई। इस हादसे में ट्रैक्टर ड्राइवर जख्मी हो गया। उधर पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू कर दी है। जिला उधमपुर के साहिल इलाके में आज एक नौमौलूद की लाश मिली। अहले शाहिदीन के मुताबिक आवारा कुत्ते मासूम नौमौलूद बच्चे को लेकर दौड़ रहे थे। लोगों ने यह मंजर देखकर कुत्तों का पीछा किया। चंद मिनट ताक़ुब करने पर कुत्तों ने नौमौलूद बच्चे की लाश छोड़कर राह फरार इख्तियार की। कुत्तों ने चीर फाड़ करके बच्चे की लाश को बुरी तरह नोच दिया था। पुलिस ने नौमौलूद की लाश कब्जे में लेकर इस मामले की तहकीकात का आगाज कर दिया है। कुछ कुत्ते इस बच्चे को मुंह में दबाए यहाँ से भाग रहे थे और मैंने देखा और उन कुत्तों से इस बच्चे को छुड़ाया। बच्चे की जो डेड बॉडी है उसकी एक टांग जो है कुत्ते पूरी तरीके से खा चुके हैं और आधा शव जो है वो बचा हुआ है और ऐसा लग रहा है कि ये रात को डिलीवरी हुई है, 24 घंटे पहले ही डिलीवरी हुई है और किसी ने इस बच्चे को नाली में फेंका है। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने कोविड की नई गाइडलाइंस जारी की है। वैक्सीन के पूरे डोज ले चुके लोगों की लखनपुर में टेस्टिंग नहीं होगी। कोविड से बचाव के मुनासिब समाजी रवैयों की जांच के लिए ज्वाइंट टीमें तश्कील दी जाएंगी। जम्मू कश्मीर के तमाम अजला में रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। स्कूल अभी भी बंद रखने का ऐलान किया गया है। आला तालीमी इदारों को खोलने की मशरूत इजाजत दी जाएगी, लेकिन स्टूडेंट्स की तादाद कम होनी चाहिए और पूरे अमले टीचर्स और स्टूडेंट्स को 100% वैक्सीन लगनी चाहिए। इस सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर से इजाजत लेनी होगी। ऐसे तालीमी इदारे जिला इंतजामिया के इश्तिराक से खुसूसी वैक्सीनेशन कैंप लगा सकते हैं। दीगर तालीमी इदारे वैक्सीन लगा चुके स्टाफ को इंतजामी उमूर के लिए हाजिरी की इजाजत दे सकते हैं। किसी भी इंडोर या आउटडोर प्रोग्राम में ज्यादा से ज्यादा 25 लोगों की शिरकत की इजाजत रहेगी। मरकजी हुकूमत की जानिब से वादी कश्मीर में मेवा सनत को बढ़ावा देने के लिए हाई डेंसिटी पौधे मुतारफ किए गए। उधर जिला पुलवामा में हाई डेंसिटी सेब के पौधे फराहम करने वाली निजी कंपनियों की जानिब से मेवा काश्तकारों के साथ धोखा करने का मामला सामने आया है। इससे काश्तकारों में काफी तशवीश है। पेश बिलाल खान की ये रिपोर्ट। वादी के दीगर हिस्सों की तरह ही जिला पुलवामा में भी 3 बरसों से सेब के रिवायती बागात की जगह हाई डेंसिटी के बागात ले रहे हैं। 3 साल के बाद अब पुलवामा में काश्तकारों का इल्जाम है कि उनके साथ धोखा किया गया है। इनका इल्जाम है कि चंद निजी कंपनियों ने इन्हें ऐसे पौधे दिए हैं जिनसे हासिल शुदा सेब की मार्केट वैल्यू ना के बराबर है। यहाँ निजी कंपनियों ने 4 अक़साम के पौधे फराहम किए हैं। इनमें ग्रीन स्मिथ की मार्केट वैल्यू काफी कम बताई जा रही है। जब हम देखते हैं ग्रीनी स्मिथ और फूजी और ये जान गोल्ड जो उन्होंने दिया है उसका यहाँ पूछने वाला ही भी नहीं है। हमारा जो पहले वाला डिलीशियस है, अम्बरी है, उसमें कोई पूछता है, लोकल मार्केट भी आता है। जब हम यहाँ दिल्ली भेजते हैं, अब कहीं भी देखो उन्होंने बोला ये शुगर फ्री है, साउथ जाएगा, लेकिन यहाँ कोई ग्राहक ही नहीं है, कोई उठाने वाला ही नहीं है। हम तो खुद काम करते हैं, हम दिल्ली भेजते हैं तो वहाँ भी उसकी कोई कंपनसेशन हमको मिलता नहीं। उल्टा क्या पैकिंग चार्जेस भी हमको देना, खुद ही देना पड़ता है, किराया समेत उसमें चला जाता है। हम चाहते हैं कि अगर इसमें कोई फॉल्ट निकला है, डिपार्टमेंट को भी इंक्वायरी लगनी चाहिए और जो ये कंपनियां हैं इनको भी इंक्वायरी लगनी चाहिए। और हमें गवर्नर साहब से हम गुजारिश करते हैं कि इस पे ध्यान दे और हमें जो हम फ्रूट ग्रोवर्स है, हमें कोई बिल्कुल इनसे कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है। कि पहली बात यह है कि पहले ये बहुत बड़े दावा करते हैं कि हमारी वैरायटी ऐसी है, हमारी वैरायटी ऐसी है। बिल्कुल ये कुछ वैरायटी इसमें है वो जो लोकल है, जो इस वक्त हमारा लोकल चल रहा था उससे भी बदतर है। मरकजी हुकूमत ने जम्मू कश्मीर में मेवा सनत को फरोग देने के लिए 2016 में हाई डेंसिटी स्कीम शुरू की थी। इस सनत से जुड़े अफराद ने काफी राहत पाई थी। सेब की क्वालिटी और पैदावार में काफी बेहतरी आई थी, लेकिन हुकूमत की इस स्कीम से जुड़ी निजी कंपनियों की जानिब से काश्तकारों को धोखे में रखा गया है। निजी कंपनियों की जानिब से किए गए मुआहदे पर काश्तकारों के दस्तखत लिए गए हैं। अब चंद अक़साम के सेब की मुनासिब कीमत ना मिलने से
काश्तकार परेशान हैं। इधर डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर ने कहा है कि मुतासरा काश्तकारों को चाहिए कि वो महकमे के जिला दफातर में अपनी शिकायत दर्ज कराएं। उन्होंने महकमे से सलाह व मशवरे के बाद ही हाई डेंसिटी बागात कायम करने का मशवरा दिया है। उनको चाहिए ग्रोवर्स को हमें अप्रोच करें, या जो चीफ हॉर्टिकल्चर अफसर डिस्ट्रिक्ट से वहाँ पर जाएं या डायरेक्टरेट में आएं जिनको नज़दीक पड़ता है, तो हम उनको आपके माध्यम से कहते हैं कि वो रिप्लेस हम करेंगे। उसकी बाइंडिंग है, अगर उसकी मार्टलिटी रहती है तो उसको रिप्लेस करना है, अगर सही वैरायटी नहीं रहती है उसको रिप्लेस करनी है। तो लोगों को गवर्नमेंट की स्कीम का फ़ायदा उठाना चाहिए। हमारे पास 5500 हेक्टेयर का टारगेट एक बड़ा है, तो उसके लिए हमने अप्लाई करना है और इंशाल्लाह हम करते जाएंगे फेज़ड मैनर। गुज़िश्ता 3 बरसों के दौरान जिला पुलवामा में अब तक तकरीबन 2500 हेक्टेयर अराजी पर सेब के रिवायती मेवा बागात की जगह हाई डेंसिटी के बागात कायम किए गए हैं। ऐसे में निजी कंपनियों की जानिब से गलत अक़साम के पौधे फराहम करने का मामला सामने आने से काश्तकार काफी फिक्रमंद है। वो मांग कर रहे हैं कि इस मामले की आला सतही जांच की जाए। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बिलाल खान की रिपोर्ट। कठुआ पुलिस स्टेशन में तैनात एक एएसआई को सीबीआई ने रंगे हाथों पकड़ लिया। एएसआई के पास से रिश्वत की रकम 5000 रुपए बरामद हुई। जालंधर के रहने वाले देवेंद्र सिंह ट्रक मालिक ने बताया कि मवेशियों की स्मगलिंग के मामले में उनकी गाड़ी कठुआ पुलिस स्टेशन में तैनात एएसआई पूरी सिंह ने पकड़ ली थी। गाड़ी को छोड़ने के लिए वो रुपए देने की मांग कर रहा था। हालांकि कोर्ट से उन्होंने गाड़ी रिलीज करा ली थी, लेकिन पुलिस एहलकार बार बार पैसों की मांग करता रहा। उसने 5000 रुपए रिश्वत मांगी थी तो मुतासरा ने जम्मू से अपने साथ सीबीआई टीम लाई। ਸਾਡਾ ਟਰੱਕ ਇੱਥੇ ਜੰਮੂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੈਂਟ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੰਗਰ ਲੋਡ ਕਰ ਲਏ। ਕਠੂਆ ਥਾਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਭੂਰੀ ਸਿੰਘ ਉਹਨੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ। ਭੂਰੀ ਸਿੰਘ ਐਸਆਈ ਤੇ ਉਹ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। 3.5 ਲੱਖ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਚ 1,20,000 ਤੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲੱਗ ਗਈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਰਕੇ, ਕੋਈ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਏਡੀ ਕਮਾਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਗੱਡੀ ਰੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਗੱਡੀ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਗੱਡੀ ਛਡਾਉਣ ਤੋਂ। ਜੇ ਗੱਡੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਰਿਟ ਕੀਤੀ तो वो पेपर उतो डॉकूमेंट इत्थे थाने च आए ते भूरी सिंह उन्होंने ने फिर बलौरीया सर तो भी पैसों की डिमांड की कि पंजाब नंबर गड्डी ते तुसीं रिलीज़ करा रहे हैं। ममलिकती वज़ीर दिफा अजय भट्ट कश्मीर के 2 रोज़ा दौरे पर हैं। कश्मीर सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लेने के मकसद से उन्होंने दोबारा दौरा शुरू किया है। सरहदों और अंदरूनी इलाकों में दुश्मनों से दरपेश चैलेंजों की तफसीली तस्वीर ममलिकती वजीर के सामने पेश की गई। खतरात से निपटने के हवाले से किए गए हिफाजती बंदोबस्त के बारे में भी आगाह किया गया। उनको आर्मी की कारकर्दगी से वाकिफ करा गया। ओवरग्राउंड वर्कर्स की निशानदही और उन्हें हदफ बनाने के फौज के ऑपरेशनों की इत्तलात फराहम की गई। मकामी मिलिटेंटों को हथियार डालने की तरगीब देने के इक़दामात के हवाले से भी भट्ट को जानकारी दी गई। उन्होंने चिनार कॉप्स वार मेमोरियल पर गुलहाए अकीदत पेश किए। उधर लाइन ऑफ कंट्रोल की अगली चौकियों पर तैनात कमांडरों ने ममलिकती वजीर को मजमूई सूरत हाल की ब्रीफिंग दी। भट्ट ने जवानों के साथ गुफ्तगू में उनकी कारकर्दगी की सताइश की। उन्होंने उभरते हुए सिक्योरिटी चैलेंजों से मौसर तरीके से निपटने के लिए तैयार रहने की ज़रूरत पर जोर दिया।